Your favorite Air Force aircraft? राफेल। Mm-hmm. राफेल काफी मैम फेमस हुआ था जब वो आया था, तो मेरे मन में था कि यार इसको तो ट्राई करना है कि Do you remember any time that they have tried to put pressure on you and you have handled it so well? तुम में से जो तुम्हारे टीममेट्स थे उन्होंने बोला कि ड्रिंक करते हैं, तो बोलते कि आप क्या करोगे। मैंने Uh-huh. बोला सर आई एम नॉट अ ड्रिंकर, तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। There are times you get even recommended, but because of some reason you can't join the academy. तो फिर वापस सेम पॉइंट से प्रिपरेशन शुरू करना पड़ता है एंड डिमोटिवेशन रियली हैम्पर्स योर प्रिपरेशन। तो उन लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहो? मैम इस सिचुएशन में तो मैं यही कहना चाहूंगा। Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav. Just a quick thing that I wanted to share with all the serious aspirant out there. I recently came across with the updated 8th edition of Disha Serious Combo. It's a set of 2 books that cover 18 years of previous paper from 2007 to 24 for both serious and serious OTA, split topic wise for English and GK. Super handy if you are someone who preferred structured practice. What I personally liked is the paper are sorted into topics 11 for English, 9 for GK, which make revision much more focused. There are 36 full paper that added up around 8640 MCQs, so plenty of material to master. Each question comes with detailed step-by-step solution, so no confusion, no guesswork. And most importantly, you are stuck to original question paper with errorless explanation, which I know is a big concern for many. Honestly, if you're prepping up for serious and you want to have a good grip over the pattern and difficulty, this is going to be worth checking out. I'm going to pin all the details in the description box. Coming back to video, we have Push Painter in this video, who has got the recommendation through APCET and Serious both the written exams. If I talk about his Serious entry, he has scored all India rank 29, and that is for Flying Branch. Along with that, in APCET, he has got the recommendation from Flying Branch as well. We have talked about certain other scenarios in this video, making sure that we cover both the entry and their difficulty level, along with their perks and benefits. And the kind of journey he had, we have talked in everything in very much detail. So without any further delay, let's get back to the video. Hi Pushpendra, welcome to the channel. एंड ये वीडियो काफी स्पेशल है बिकॉज बहुत सारे सेगमेंट्स है जिस इस वीडियो में हम कनेक्ट करने वाले हैं, चाहे वो एफकेट और सीरियस एंट्री का कंपैरिजन हो, और आपने काफी सारी चीजों के लिए यू आर बीइंग ओपन टू दैट विल ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग इन दिस वीडियो लाइक रैपिड फायर। हम डिफरेंस देखेंगे फ्लाइंग ब्रांच की रिगार्डिंग, कुछ कुछ मिथ्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक थैंक यू कहना चाहूँगा मैं आपको कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया, और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस हियर सो दैट आई कैन हेल्प सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एस्पायर कर रहे हैं फॉर द डिफेंस फोर्सेस। डेफिनेटली पुष्पेंद्र, पर पहले हम आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं कि जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कैसे की जर्नी शुरू हुई, ग्रेजुएशन में आपने क्या लिया, 12th के बाद स्ट्रीम में क्या था, अलॉन्ग विद दैट हाउ डिड यू डिसाइडेड कि अब मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, एंड कितने अटेम्प्ट लगे आपको इस चीज को अचीव करने में, एंड फाइनली व्हाई डिड यू चूज अ फ्लाइंग ब्रांच? सो मैम बेसिकली मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एंड आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़। एंड अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स इन 12th, तो मेरे पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी। एंड अभी करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, एंड इट इज़ एमसीए बेसिकली। एंड अगर बात करें तो डिफेंस की, तो मैम बचपन से ही एक आपको एक गाइडिंग लाइट मिलती है, तो मेरे भाई की तरफ से मुझे था कि उसको अपना डिफेंस ज्वाइन करने का काफ़ी था शौक। तो वहां से मेरे अंदर भी एक आया कि हाँ मुझे भी इसी फील्ड में जाना है, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। तो उसको देख देख के मैंने अपने आप को, हाँ वो मेरा आइडल था बेसिकली ज्वाइन करने के लिए। तो बाद में जब मैंने एनडीए के बारे में पता लगा मेरे को, मेरे एक कजन के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया था, तो इट गेव मी मोटिवेशन। एंड लेटर ऑन एक एनडीए के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो वहां से भी काफी मुझे अवेयरनेस हुई कि हाँ एनडीए के अंदर ऐसे ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की। एंड लेटर ऑन व्हेन माय ब्रदर सेड दैट यू शुड जॉइन एनसीसी, तो मैंने एनसीसी एयरविंग चूज करी, बिकॉज उसने कहा था मेरे को कि अपना यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्लाइंग, मतलब उसको देखते हुए मैंने एनसीसी एयरविंग चूज करी। एंड वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे और बैचमेट्स थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, एंड इवन वी हैड एन इंटरेक्शन विद ऑफिसर्स। एंड हमारे जो पीआई स्टाफ है उनके साथ बातचीत करके बहुत सही अच्छा लगा। एंड जो हमारे कैंप्स थे, एक्टिविटीज थी एनसीसी के अंदर, बीट फ्लाइंग और फायरिंग,
एंड ड्रिल। तो इन चीज़ों ने काफ़ी मोटिवेट किया एंड मुझे लगा कि फिर मुझे एयरफोर्स के अंदर जाना चाहिए। एंड क्योंकि एयरफोर्स की एक खासियत है कि आपको फ्लाइंग का मौका मिलता है, तो ये मेरे अंदर था कि मैं जब बचपन में एयरक्राफ्ट देखता था उड़ते हुए, तो मैं अपनी दादी को कहता था कि दादी देखना एक दिन मैं भी ऐसे ही उड़ के आऊंगा। तो शी यूज्ड टू से कि हाँ हाँ, फिर हम तेरे को यहाँ से हेलो करा करेंगे। तो मुझे याद था कि हाँ, ये सोचा था मैंने बचपन से ही, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मेरे अंदर था कि मुझे एयरफोर्स के अंदर जाना है प्रेफरेबली। एंड टॉकिंग अबाउट द अटेम्प्ट्स, तो मेरे टोटल 9 अटेम्प्ट्स हैं, जिसमें मेरे 4 स्क्रीन आउट्स हैं और 3 कॉन्फ्रेंसेस एंड 2 रिकमेंडेशंस। एंड अगर रिकमेंडेशंस की बात करें तो आई गोट रिकमेंडेड फ्रॉम वन एफ एस बी देहरादून फॉर द सी डी एस एंट्री। एंड जो सेकंड रिकमेंडेशंस थी वो थी एफकेट एंट्री के लिए, बेसिकली फ्रॉम 3 FSB गांधीनगर। ओके। आई मीन अब दोनों तरफ से फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हो आप, पुष्पेंद्र। तो फैमिली का क्या रिएक्शन है कि मतलब उनको कैसा फील हो रहा मैम, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मैंने आज तक उनको इतना खुश नहीं देखा, है? और उनको देख के मुझे काफी खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया। मुझे रिकमेंडेशन की, अपनी रिकमेंडेशन की इतनी खुशी है जिनकी जितनी की मुझे उनको देख के होती है कि हाँ, ये इतने खुश हैं, तो मुझे और खुशी होती है। बिल्कुल। अभी जैसे दो एंट्रीज हैं, सीडीएस एएफए और एक एफकेट के थ्रू अगर आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करते हो, आपने पूरा प्रोसेस गो थ्रू करा है, रिटन टू एसएसपी टू मेरिट, आपने उसके सारे सिनेरियोज देखे हैं। तो दोनों के बीच में हम प्रिविलेजेस भी देखेंगे, एंट्रीज के अंदर क्या है, कंपटीशन लेवल पे, एंड ड्रॉबैक क्या है, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू अल्टीमेटली चूज, एंड व्हाट इज द रीजन दोनों एंट्रीज के बीच में। तो थोड़ा सा इसके बीच में क्लैरिफाई करो, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रेशर अटेम्प्ट के लिए जाते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर कि क्या चीज ज्यादा बेनिफिशियल है, क्या चीज करनी चाहिए। तो गिव दैट क्लैरिटी। तो मैम, बेसिकली डिफरेंस आपका एग्जाम से शुरू हो जाता है। हम्म। सबसे पहले तो जो सीडीएस एंट्री है, हम्म। उसमें आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है। और ये जो हमारा एफकेट एंट्री है, उसमें एग्जामिनेशन हमारा सीडेक करवाता है। हम्म। तो एग्जामिनेशन का लेवल में एक तो पहली बात डिफरेंट है दोनों का। जो हम्म। सीडीएस का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा एक अच्छा लेवल है उसका एज कम्पेयर टू एफकेट। हम्म। एंड फिर बात करें आगे एसएसबी की, तो मैम एसएसबी में क्या रहता है कि एफकेट की जो एसएसबी है उसमें जो रिपोर्टिंग रहती है वो थोड़ा हाई रहती है काफी। जैसे आपके पास एवरेज रिपोर्टिंग 200 के आसपास होती है, नहीं तो 150 या 200 के बीच में रहती है। हम्म। बट अगर सीडीएस की बात करें मैम, तो उसमें जो रिपोर्टिंग है वो 88, 90, 100, मैक्सिमम 100 होता है उसमें। तो हम्म। इसका मैम काफी फर्क पड़ता है। एंड और अगर अंदर बात करें तो फिर स्क्रीनिंग में अल्टीमेटली जो हमारा पीपीडीटी जब होता है, हम्म। तो जब हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है तो मैम उसमें भी हमारा ग्रुप काफी छोटा बनता है, जैसे जो सीडीएस एंट्री होती है। एंड एफकेट में थोड़ा ग्रुप हमारा 15 to 20 के आसपास बनता है, और वेरे सीडीएस में मेरे मेरे को याद है तो हमारा ग्रुप 10 का था। तो हम्म। इसका भी मैम फर्क पड़ता है। और अंदर तो मैम बच्चे लगभग लगभग सेम होते हैं, बट हाँ, सीडीएस में मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा सा ज्यादा कोऑपरेशन मिलती है एज कम्पेयर टू एफकेट एंट्री में। और अगर आगे जाके बात करें, हमारा जो सीडीएस का जो कमीशन है, तो सीडीएस में विल गेट परमानेंट कमीशन। एंड हमारी ये सर्विस जब तक हम रिटायर नहीं होते तब तक रहती है हमारे साथ। एंड वेर एज अगर हम एफकैट की बात करें तो उसमें हम हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, दैट इज फॉर द 14 ईयर्स। एंड उसके बाद अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू योर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। वैकेंसीज मैम, वैकेंसीज का एक फर्क है कि जो सीडीएस एंट्री है उसमें वैकेंसीज आपकी 32 हैं। और सीडीएस एंट्री जो एएफए के लिए है वो सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। एंड वेर एज जो एफकेट एंट्री है उसमें वैकेंसीज थोड़ी, मतलब फ्लाइंग के लिए मेरे को अगर ध्यान है तो 21 थी इस बार। और अदर ब्रांचेस का भी काफी फर्क पड़ता है। जो हमारी सीडीएस जो एंट्री है उसमें मैम हमें सिर्फ फ्लाइंग का ही अपॉर्चुनिटी है, हम ग्राउंड ड्यूटी नहीं जा सकते। राइट। एंड सो इन केस अगर कोई सीपीएसएस फेल होता है तो फिर आईएमए के लिए जाएगा, फिर वो अपना एयरफोर्स एकेडमी नहीं ज्वाइन करता है। वेर एज अगर एफकेट है, अगर उसमें कोई सीपीएसएस भी फेल होता है तो ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्राउंड ड्यूटी। तो ये मेजर डिफरेंस है इनका। और अगर बात करें मेरिट का मैम, तो जो सीडीएस में मेरिट का इतना इशू नहीं रहता, मेरे एफकैट में मैम आपको स्कोर अच्छा करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा है इशू एफकैट में। इशू नहीं है, मतलब डिफरेंस में। पुष्पेंद्र, मैंने इतने कैंडिडेट से बात होती है, जैसे वन ऑफ देम इज यू, बट आपका मेडिकल क्लियर है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट आप मानेंगे नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि 32 की 32 सीट, जितनी भी सीट वैकेंसीज निकलती है वो भरती हैं जब व्हेन इट कम्स टू सीडीएस ब्रांच। तो बहुत लोगों की कहीं ना कहीं वहां पे मेरिट आउट तो होने का इशू नहीं है, पर मेडिकल इशू काफी लोगों को हो जाता है। तो वो भी चीज हम लेटर ऑन टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स कम टू द रिटन पार्ट। दोनों आपने एग्जाम्स दिए, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर बोथ द एग्जाम्स, वेदर इट कम्स टू सीरियस रिटन एग्जाम एंड एफकेट? अगर है तो आप किस चीजों को
अपने सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी दोनों एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, अलॉन्ग विद दैट टाइम टेबल आपने क्या रखा था वर्क, एंड कितने सब्जेक्ट को जो आप टाइम दे रहे हैं, हाउ यू यूज टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है? तो मैम डेफिनेटली दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकती, क्योंकि सेम ही पैटर्न है। एंड थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है एफकैट में कि आपका जो मैथमेटिक्स आता है एफकैट का वो अर्थमेटिक होता है, एंड उसमें एक सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि सीडीएस में नहीं पूछी जाती। अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग आपकी जो जीके है वो थोड़ी स्टैटिक रहती है एफकैट के अंदर, बट जो सीडीएस है उसमें थोड़ा सा वे ऑफ क्वेश्चनिंग डिफरेंट है। तो हल्की फुल्की सी अगर आप एडिशनल लॉजिकल रीजनिंग कर लोगे तो यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशन। एंड अगर बात करें सीडीएस की सिलेबस की, तो मैम उसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें आपका एडवांस मैथमेटिक्स भी आता है, और ज्यादा वेटेज आपकी एडवांस की रहती है रादर देन अर्थमेटिक। तो ये मेजर डिफरेंस है। बट अगर जो एक एस्पिरेंट है वो अगर प्रिपेयर कर रहा है फॉर द सीडीएस, तो इट वुड बी इजी फॉर हिम फॉर द एफकेट एज वेल, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैम आई टुक कोचिंग फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज, एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन 2022। तो उसके बाद इट टुक मी नियर अबाउट 1 ईयर फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, क्योंकि बीच में थोड़ा कॉलेज की प्रिपरेशन भी होती थी, कॉलेज एकेडमिक्स भी है, उसका भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। एंड तब हमारा स्केड्यूल ये रहता था कि आई यूज टू गो फॉर द कोचिंग अराउंड 3 to 6, एंड उसके बाद आधे घंटे के रेस्ट के बाद मैं अपना 6:30 से लेकर 7:30 या 8 तक थोड़ा पढ़ता था। एंड देन आफ्टर हैविंग डिनर आई यूज टू अगेन फोकस अपॉन दोज कोचिंग मटेरियल एंड अप टू 11। तो कॉलेज में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें देखनी होती हैं। बट जब मेरा खत्म हुआ तब आई गेट द चांस फॉर प्रिपरेशन फॉर 3 मंथ्स। लाइक मेरे पास मेरा कॉलेज खत्म हुआ था जून में, तो जून जुलाई एंड अगस्त आई प्रिपेयर फॉर द 3 मंथ्स। एंड तब मेरा जो स्केड्यूल रहता था, आई यूज टू वेक अप एट 7 in the morning, एंड तब मैं फटाफट फ्रेश होने के लिए अपना साइकिलिंग के लिए निकल जाता था। एंड उसके बाद जैसे ही फ्रेश अप हुआ और ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 9 से लेकर अपना 11 तक मैं इंग्लिश पे फोकस करता था, 2 घंटे, जिसमें मैं अपना वोकैब और अपना ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अपना सेपरेट करता था, और दूसरा जो हमारी ग्रामर पोर्शन है उसको अलग करता था प्रिपेयर। एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर आई यूज टू गिव फॉर द मैथमेटिक्स, इंक्लूडिंग रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत जरूरी है। And क्योंकि एग्जॉशन हो जाती है तो बीच में आपको फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता था। तो फिर उसके बाद 1 से 2 या 1 से 3 तक मैं थोड़ा सा अपना रिलैक्स करता था, क्योंकि 4 घंटे का लगभग होता था पहला शेड्यूल, तो फिर थोड़ा सा बनता है। एंड उसके बाद देन आई यूज टू फोकस अपॉन जीएस फ्रॉम 3 to 4, या अपना 3 से 4:30 तक मैं अपना जीएस पढ़ता था, जिसमें आई यूज टू फोकस particularly upon polity, geography, sometimes a little bit of economics and science, क्योंकि I have been a student of non-medical, तो साइंस पे थोड़ा सा रहता था। बट ये है कि हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा था कि हाँ 10 दिन अगर पढ़ना तो फिर लगातार आई यूज टू स्टडी पॉलिटी, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं उस पर फोकस करता था अपना ज्योग्राफी पे या फिर साइंस पे। एंड देन फिर एफकैट की भी प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर बीच में फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस लगा लेता था ऑनलाइन, एंड अप टू 6:30 आई यूज टू फिनिश माय स्टडी आवर्स। एंड उसके बाद फिर मैं फिर से घूमने निकल जाता था थोड़ा आसपास, और अपना थोड़ा पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। तो मैम स्पेसिफिकली अगर बात करें, मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले तो देखा कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। जैसे हर बच्चे को ये देखना चाहिए कि उसकी जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या है। जैसे अगर मेरा नॉन मेडिकल था तो एक साइंस मेरी अच्छी थी, और दूसरा मैथमेटिक्स, ये मेरे अच्छे थे। तो मेरे को जरूरत थी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, एंड थोड़ा सा अपना जो हमारी पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा रखना है। जैसे आई यूज टू फोकस मोर अपॉन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एंड जीएस को मैं थोड़ा सा कम अपना टाइम स्पेंड करता था। बट अगर कोई जीएस बैकग्राउंड से है तो दे कैन ग्रिप मोर ऑन जीएस, एंड दे कैन फोकस लिटिल बिट अपॉन मैथमेटिक्स। ऐसा हो सकता है कि हाँ थोड़ा चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो मैम कोचिंग में हमें जो सर की बुक्स हैं उन्हीं से मैंने मैथमेटिक्स को प्रिपेयर किया, और इंग्लिश को मैंने यूजुअली मैं प्रीवियस ईयर पे फोकस करता था, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपका प्रीवियस ईयर पे काफी डिपेंड करता है, इंग्लिश का मेजर पोर्शन। एंड एक फैक्ट है कि आपका लगभग लगभग जो क्वेश्चन होते हैं, 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 20% सिलेबस में से आते हैं।
तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको देखना कि हाँ आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हम्म, एंड जो एक इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट रहा मेरे को लगा कि बहुत जरूरी है कि हम्म, हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है, चाहे आप थोड़ा पढ़ो बट आप रिवाइज जरूर करो। बिल्कुल। एंड दूसरा कि आप प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट जरूर करो, सो हम्म, दैट यू नो कि हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। बिकॉज हमें क्या होता है कि हमने पढ़ तो लिया, डेटा हमारे पास है, हमने क्या क्या याद करना है वो सब कुछ है हमारे पास, बट प्रेजेंट क्या करना है वहाँ पे, हम्म, उन्होंने पूछना कैसे है हमसे वो हमें नहीं पता होता। हम्म, तो आई यूज टू फॉलो अ चैनल बाय वैशाली मैम ऑन ऑन टेलीग्राम, दैट इज इनसाइड सीडीएस। तो वहाँ पे मैम ने क्या कर रखा है कि अपना टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करते हैं वो। तो जैसे आपने टॉपिक कवर किया, आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स करो, फिर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करो कि हाँ मैं यहाँ लैग कर रहा था। उससे दो चीजें होंगी कि एक तो आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और हम्म, दूसरा ये कि आपको अपनी कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, कहाँ आपको फिर से गो थ्रू करना है चीजों को, वो पता लग जाता है। हम्म। तो वो बहुत जरूरी होता है, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर अटेम्प्टेशन। पुष्पेंद्र, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं एसएसपी के रिगार्डिंग में। एसएसपी की जब बात आती है तो इट इज कम्प्लीटली अपोजिट टू व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड इन रिटन। अपोजिट इन द सेंस कि वहां पे सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बीइंग मोनोटोनस इन आवर स्टडीज। यहाँ पे हमें अपने आप को भी ग्रूम करना है, पर्सनालिटी की भी रिक्वायरमेंट है, सर्टेन टास्क है उसके हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड, डिड एनी कोचिंग और यू हैव डन अ सेल्फ प्रिपरेशन, एंड जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स आपके रहे हैं उनकी लर्निंग क्या रही है? तो मैं बोलता हूँ कि दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक जो पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं और एक वो जो जिनको एसएसबी बनाती है। तो मैं दूसरे वाला हूँ जिसने एसएसबी से काफी कुछ सीखा है। तो हम्म, मैंने कोचिंग ली थी मैम जब मैंने स्टार्ट करना था प्रिपरेशन को, एंड वहां से मुझे अपना एसएसबी के प्रोसेस के बारे में काफी पता लगा कि क्या क्या होता है बेसिकली। हम्म, तो वहाँ पे जब आपको स्क्रीनिंग वगैरह होती है और अपना ये जो जितने भी टास्क हैं हमारे एसएसबी के, इसके बारे में ठीक ठाक नॉलेज गेन की मैंने वहाँ से। हम्म, एंड आई फोकस्ड ऑन सेल्फ प्रिपरेशन एज वेल, क्योंकि एट द एंड करना आपको ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो थिंग इज कि आप कोचिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, राइट। कि दे कैन ओनली टेल यू द प्रोसेस, बट लेटर ऑन आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको एनहांस करने के लिए खुद ही फोकस करना पड़ेगा। तो आई आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उसके साथ मैं अपना स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करता था ऑनलाइन। एंड ही यूज टू शेयर अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, एंड हम दोनों पिक्चर्स की स्टोरी लिखते थे, एंड उसके बाद वी यूज टू नरेट विद ओके। ईच अदर। तो एक ये चीज अच्छी हुई कि उससे हमारी नरेशन काफी इंप्रूव होगी। एंड जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था पहले अटेम्प्ट के बाद, उसके बाद मैंने ये चीज करी थी, तो उससे क्या हुआ कि स्क्रीनिंग में थोड़ा सा लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि यार स्क्रीनिंग हो सकती है। ऑल्दो जर्नी मेरी काफी अप एंड डाउन रही है स्क्रीनिंग में भी, कि एक स्क्रीन आउट और दूसरा कॉन्फ्रेंस, फिर स्क्रीन आउट फिर कॉन्फ्रेंस, बट एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं तो पता ही नहीं होता करना क्या है भाई, ये कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ कोई भी बता दे हाँ तो हाँ, वहां चल पड़ते हैं कि हाँ चल अच्छा तूने ये बताया तो हम यहाँ चलते हैं भाई, अच्छा किसी और ने ये बताया कि भाई ये कर ले तो ये हो जाएगा, तो भाई चलो यहाँ चलते हैं। तो ये भटकने वाला काम काफी रहता है। बिल्कुल। बट पर भटकना जरूरी भी है, ये भी बात है कि जब तक भटकोगे नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे। राइट राइट। ऐसा ऐसा शायद साहिल सर ने बोला था, मुझे लगता है आपके आपके इंटरव्यू पे वहां पे कुछ। फिर मैंने सीनियर से भी कांटेक्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो दे शेयर्ड सम वीडियोस विद मी। एंड उन्होंने बोला कि यार हर टास्क की अगर बात करें तो पहले तो अपने OIR पे फोकस करो, OIR बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड OIR के लिए आपका जो एफकेट का प्रिपरेशन करता है बच्चा, उससे काफी आपको हेल्प मिलती है। एंड दूसरा कुछ एसएसबी क्रैक ऑफिशियल के कुछ पीडीएफ्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वहां से आपको जो OIR का कंटेंट है वो मिल सकता है। बिल्कुल। तो वहां से मैंने उसको प्रिपेयर किया। एंड स्क्रीनिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि पीपीटी हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर विद माय फ्रेंड। हाँ। एंड अगर स्टेज 2 की बात करें साइकोलॉजी के लिए, तो मैम उसके लिए मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन, जो मैंने कहीं ना कहीं कहीं कंट्रीब्यूशन दिया हो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे, या फिर किसी को देखा कि कोई काम कैसे होता है। बेसिकली हमें साइकोलॉजी में ये जानना है कि वो जो हमारा डिफेंस है वो हमें ये जानना चाहता है कि आप काम करने का तरीका कैसे है, क्या आप कोई काम सीक्वेंशियल वे में करते हो कि नहीं करते हो। तो वो चीज है, और अवेयरनेस है आपको कि नहीं। तो अवेयरनेस लेवल पे काम किया कि अगर किसी के पास कोई पावर है, अगर कोई आईएएस है तो आईएएस के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो कितनी चीजें कर सकता है। राइट अगर कोई टीचर है तो टीचर एक अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और क्या क्या काम कर सकता है। राइट। एक स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ, तो मैं भी क्या क्या कर सकता हूँ अपने एंड पे। तो ये चीजों की जानकारी ली, और चैट जीपीटी का बहुत यूज किया मैंने, मतलब अंधा इस्तेमाल किया कि भाई, क्योंकि मुझे था कि
आपको कोई बताने वाला अगर हो सकता है तो चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल तो पॉसिबल नहीं है कि हर बंदे के पास जाके पूछो हाँ भाई आपका काम क्या है। तो राइट। बेटर है कि आप चैट जीपीटी करो, क्योंकि काफी कंटेंट अवेलेबल है और जो कि आपको काफी अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। तो मैम अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत जरूरी मैं बोलूंगा। आपने कहीं पे भी अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी किया तो दूसरों को देखो कि काम कैसे होता है। हाँ। तो आप जानो कि हाँ कि अगर कोई डूब रहा है बच्चा तो उसको बचाने का क्या एसओपी रहेगा, ये बहुत जरूरी रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को अवेयर किया इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी अगर बात करें स्पेसिफिकली, और टैट के लिए अगर स्पेसिफिक रहूँ मैं। और उसके बाद जो वैट है, वैट आपका यही रहता है कि थोड़ा अगर आपको इंग्लिश अगर अच्छी लिख लेते हो और अगर थोड़े ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस अगर आप बना सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों से ये चीज़ें होती हैं, तो इट कैन हेल्प यू आउट। और एसआरडीज में भी मैम यही है कि अवेयरनेस अगर आपको है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर देन इट बी प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर आपको पता है, अवेयरनेस है, अगर एक, मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लेवल की अवेयरनेस चाहिए, बट एक नॉर्मल जो ह्यूमन को जरूरी है वो अगर है तो आप एसआरटीज बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड सेम गोज विद दी अपना एसडी। एसडी में तो मेन तो ये है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए और अपने पेरेंट्स के जो व्यूज हैं आपके रिगार्डिंग उनके बारे में पता होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स के बारे में क्या आपके व्यूज हैं, और आपको खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मेन है कि खुद को भी जानो। आप ऐसे ये चीजें आपको ना काफी अवेयर कर देती हैं अपने बारे में भी। तो फिर आपने अपनी एसडी में क्या लिखा था, मुझे थोड़ा सा हिंट चाहिए। कि जैसे मैं पेरेंट्स के बारे में लिखता था कि उनको लगता है कि आई एम वेरी कैपेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और वो मुझे काफी ट्रस्टवर्थी मानते हैं एंड वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं घर पे भी और कभी बाहर भी हूँ तो भी। एंड फिर लास्ट में मैं कुछ चीजें ऐड करता था कि उनको, वो मुझे कैसे गाइड करते हैं सो दैट आई कैन बिकम अ गुड ह्यूमन। जैसे आई यूज टू राइट कि दे गाइड मी टू बिकम अ बैलेंस पर्सनैलिटी इन एकेडमिक्स एज वेल एज इन स्पोर्ट्स। एंड यस कि कई बार वो कंसर्न होते हैं मेरे बारे में जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ, क्योंकि स्लीप साइकिल थोड़ा बिगड़ता था मेरा। तो बस एक बेसिक बेसिक सी चीजें मैं ऐड करता था, कोई बहुत हाई फाई नहीं करता था मैं एडिशन, बट हाँ बेसिक नॉर्मल। और फ्रेंड्स का जैसे अगर मैं फ्रेंड्स किससे पूछता था कि हाँ तुम्हें कैसा लगता है मेरे बारे में, तो बताते हैं कि यू आर वेरी जॉली नेचर और अपना आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा रखते हो, हाँ। हेल्पफुल है। तो ये, और मैम एक रियलिटी है कि हर कोई बंदा ऐसा ही है, बट हमें एक ये जानने की जरूरत है कि कोई स्पेशल अलग नहीं है कोई भी, सारे नॉर्मल हैं। बट ऑल दैट यू नीड इज कि अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी है वहाँ पे। जीटीओ की मैम, तो अगर जीटीओ में मैम मेरे को एक मेजर प्रॉब्लम रहती थी कि जीटीओ में मैं एक्सप्रेसिव नहीं था। नॉलेज थी मेरे पास बट जीडीज में मैं हमेशा शांत सा पीछे से बस देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है भाई, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। जीडी मेरा हमेशा इशू रहता था। तो उसके लिए मैम सबसे पहले तो एक एक्सप्रेसिव बनो कि हाँ आपको कहीं भी कोई थॉट आ रहा है, आपके मन में कोई इच्छा है तो शेयर करो। ठीक है। दूसरा कि नॉलेज, फिर से नॉलेज अपना यहाँ पे प्ले करती है इम्पोर्टेंट पार्ट, कि अगर आपको आसपास का जो चल रहा है कंडीशंस उनके बारे में पता है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। लास्ट के 6 महीने के आपको अगर हल्के फुल्के से भी आइडिया है कि हाँ हाँ ये चल रहा है और क्यों चल रहा है, बस ये जरूरी है कि क्यूरियोसिटी जरूर रखना अपने मन में कि हाँ कोई भी चीज़ है तो उसको इन डेप्थ में स्टडी करो, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ अच्छा भाई ये पता है, कोई डेटा अगर है तो उसको पढ़ो भी हाँ कि क्यों कारण रहा है उस चीज का, तो राइट। कारण जानो जरूर उस चीज का। हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बट फिर बाद में हम भूल जाते हैं, तो फिर हमारे पास लीड्स नहीं बचती बोलने के लिए जीडी में। तो फिर ये अगर हम इन डेप्थ में हम अगर स्टडी करेंगे विद लॉजिक कि ये कारण ये रहा है इसका, कोई किसी भी चीज का, तो हम बिल्कुल इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें कॉन्फिडेंस आता है जब हमारे पास नॉलेज होती है। तो एक अंदर से रहता है कि हाँ यार मैं तो बोल सकता हूँ इसके बारे में। तो आई यूज टू वॉच स्टडी आईक्यू, तो वहाँ पे काफी कंटेंट आपका डेली में एक वीडियो आती है अंकित अग्रवाल सर की और प्रशांत धवन सर की, हाँ। वो अगर आप देख लो 2-3 वीडियोस तो इनफ है। तो आई यूज टू रिलाई अपॉन दी यूट्यूब वीडियोस। एंड हाँ एक मैगजीन जरूर है मेरे पास, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू। इसमें क्या है कि आपको 1 महीने का सारा क्रिस्प आपका नॉलेज मिल जाती है आपको 1 महीने के अंदर अंदर, जो भी कुछ घटना घटी हो। तो उससे क्या रहता है कि आपको न्यूज़पेपर को बार बार डेली डेली पढ़ने से बेटर है कि हाँ एंड ऑफ द मंथ या इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ आप वो चीज़ पढ़ लो, तो आपको अवेयरनेस रहेगी। और उसमें जीडीज की भी काफ़ी अच्छी अच्छी टॉपिक्स मिलते हैं
और मैं तो देख रहा था कि जो एमबीए की जीडीज होती हैं वो काफी मतलब इन डेप्थ होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी जो जीडीज होती हैं, तो वहां से हमें काफी अपना डाटा मिल सकता है। तो फिर वो मैंने अपने अंदर इम्बाइब किया उन चीज़ों को, और देन आई इम्प्रूव माई जनरल नॉलेज, और फिर वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ यहाँ पे जीडी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और बात करें अगर पीजीटी की मैम, तो पीजीटी में भी यही इशू रहता था कि मैं पीछे पीछे हमेशा ही डर डर के रहना कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं बोल दिया तो। हम्म, बट फिर जब रेकमेंड हुआ तो उस अटेम्प्ट में ये था कि आई कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रुप। द मेन थिंग इज कि योर ग्रुप शुड गो अहेड। आपको इंडिविजुअल नहीं सोचना कि मैंने परफॉर्म करना है। द फोकस शुड बी ऑन कि हाँ हमारा ग्रुप कैसे निकले इस प्रॉब्लम से। अगर आप कोई और आइडिया दे रहा है बट आप उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ओके। दैट्स ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन। थिंग इज कि यू नीड टू फोकस ऑन कि ग्रुप कैसे आगे बढ़े। अगर आपको रस्सी बांधनी आती है तो रस्सी बांध के हेल्प कर दो। जरूरी थोड़ा ना हमने फट्टा पकड़ के आगे आगे भागते रहना है। द थिंग इज कि सभी के साथ जब चलता है ना बंदा, तो हमारा ग्रुप बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और सीडीएस के अंदर तो मैम परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, बिकॉज ग्रुप काफी कोऑपरेटिव रहा था। तो उसकी वजह से भी अपना हमारा पीजीटी भी काफी जल्दी खत्म हो गया था। तो काफी सही परफॉर्मेंस रही थी सभी की। बट अगर कोई दूसरे बच्चे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं या फिर कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इससे फिर यही इशू रहता है कि ग्रुप की परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी खराब रहती है, एंड इंडिविजुअली भी वो इम्पैक्ट करते हैं। और अगर बात करें मैम अब लेक्चरेट की, तो लेक्चरेट का आई यूज टू प्रिपेयर लेक्चरेट फ्रॉम माय कॉलेज डेज। सिर्फ एक प्रोसेस था जो मैं प्रिपेयर करता था कॉलेज में अकॉर्डिंग फॉर दी एचएसबी, वो लेक्चरेट था। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा था कि लेक्चरेट बहुत जरूरी है, कि होता भी है ऐसी बात नहीं। पर राइट। और प्रोसेस को छोड़ के मैंने लेक्चरेट पे फोकस करना शुरू कर दिया था। आई यूज टू रिकॉर्ड वीडियोस ऑफ माई सेल्फ एंड ऑन दी फोन एंड समटाइम्स ऑन दी लैपटॉप। ओके। और डेटा अगर थोड़ा सा पढ़ लो आपकी किसी भी टॉपिक के बारे में, कि कोई भी चीज का अगर टॉपिक है, मान लेते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर है, हाँ। तो उसमें आप जानो कि ये क्या है, व्हाट इट इज, है क्या, कारण क्या है इसका लाने का, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, राइट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इसके प्रोज क्या रहेंगे, इसके कॉन्स क्या रहेंगे, और हाँ। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका क्या स्टैंड है। राइट। हर किसी का अलग अलग स्टैंड है। दो ग्रुप बन चुके हैं आपस में। तो ये पांच चीजें अगर हम बोल देंगे उसके अंदर, एक एक मिनट भी अगर हम लें, मतलब अगर हम 45 सेकेंड्स भी लें इन पे बोलने पे, तो 3 मिनट आराम से इंसान बोल सकता है। तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया इसको। बट ये है कि ये चीजें आपको जब आप प्रिपेयर करते हो तो एक अनकन्वेंशनल विजडम आप डेवलप करते हो, कि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है प्रिपेयर करने का। तो वो चीज आप जब प्रिपरेशन फेज में आते हो तभी आपको समझ आती है कि हाँ इसको ऐसे हैंडल करना है। तो वो चीज़ मैंने वहां से डेवलप करी। एंड उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की अगर बात करें तो मैम मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रही थी, तो मैं 9 या 8 कर लेता था हमेशा, क्योंकि मैं रनिंग वगैरह भी करता हूँ। तो ऐसा रहता था कि मैं 8 9 कर लेता था। और बाकी जो हमारे एफजीटी हैं या फिर जो दूसरे टास्क हैं उनमें तो जो पीजीटी के रूल्स हैं वही फॉलो होते हैं, तो सेम ही रहते हैं। ठीक है। और अगर बात करें मैम हमारे इंटरव्यू की, तो मैम इंटरव्यू में हमारा सबसे पहले तो हमें पीआई की फॉर्म भरना अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल। और हैंड राइटिंग का मैम एक एम्फेसिस बहुत देना चाहूंगा मैम, एक साइक के लिए भी, हम्म, कि साइक में हमें हैंड राइटिंग थोड़ी सी अगर हम इम्प्रूव कर सकें तो ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हो जो साइकोलॉजिस्ट को अगर वही ना समझ आए तो हम्म, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। एंड सेम गोज विद द इंटरव्यू एज वेल, कि आपने जो लिखा है अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझ ना आए तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है, और क्लैरिटी ना मिले उनको तो इट डजंट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। तो राइट। मैं चाहूंगा कि हाँ सभी अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, एंड पीआई की फॉर्म भरने का थोड़ा सा सीखें कि हाँ कैसे भरना चाहिए, आपको क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कैसे ऐसे डालनी है, कितना कुछ बताना है उसको। बताना भी ये नहीं होता कि सब कुछ ही बता दो, कि छोटी छोटी चीजें भी जरूर मैटर करती हैं, बट ऐसा है कि जब आप जिस चीज के बारे में आप बता सको, जिस चीज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, वो बताना जरूरी है। रादर देन कि हाँ मैंने किया था। अगर किसी चीज में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में किसी ने पार्टिसिपेट किया बट अगर उसको बाद में लेटर ऑन उसकी नॉलेज नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। फिर इससे बेटर ये है कि आपको जिसकी भी नॉलेज है वो चीज डालो अच्छे से, और अपने सिटी के बारे में जानो। स्टार्टिंग में पहला मेरे ख्याल से यही होता है कि आपके नेम होता है, पेरेंट्स का होता है, फिर पॉपुलेशन आती है। तो वहां से आप अपना सिटी के बारे में भी जानो, कि हाँ उसकी 5 से 6 चीजें नोट करो, कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या रही है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और इंडस्ट्रीज वगैरह कैसी हैं, वेदर कंडीशंस कैसी रहती हैं हमारी, और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स कैसे हैं। तो ये 5 6 चीजें जब आप इन डेप्थ में डालते हो अपने अपने से रिलेटेड चीजों में,
be it yourself, your extracurricular activities or your strength weaknesses. तो वो फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कोई डाउट नहीं रहता कि हाँ, कोई वैलिडेशन नहीं सीख करता फिर वो आपसे कि हाँ और बता और बता। जब आपको पता है कि हाँ मैंने करके दिखा दिया, ये चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं, तो फिर उसको भी कुछ वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है जानने के लिए। बट अगर उसको लगेगा कि हाँ आप एक दो चीजें बता के शांत हो गए, तो फिर वो जानने की कोशिश करेगा आपसे, और बताओ यार मजा नहीं आ रहा, ऐसी चीजें होती हैं। और दूसरा मैम, इंटरव्यू में मैंने ये किया कि स्ट्रक्चरल पार्ट एक होता है, हमें आंसर जो देना है हमेशा स्ट्रक्चरल वे में देना होता है। कि जैसे एक फौज का काम होता है मैम, वो कोई भी काम ना सीधा नहीं करती, हमेशा एक हायरार्किकल वे में चलती है। तो जैसे अगर बेसिकली कोई चीज अगर आपने ऑर्गेनाइज करानी है, तो पहले परमिशंस ली जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी जो कमिटीज होती हैं वो बैठती हैं, वो बात करती हैं, फिर उसके बाद आपके ड्यूटीज असाइन होती हैं हर किसी की, फिर इनविटेशंस जाते हैं। तो इस वे में अगर आप काम करते हो तो एक अच्छा लगता है कि हाँ प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी रहती है। तो इंटरव्यू में भी ये चीज है कि आपको प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि स्ट्रक्चरल वे में प्रेजेंट करो हमेशा हर चीज को, रादर देन अपना कुछ भी मतलब एक चीज वहां से बोल दी, दूसरी चीज यहाँ से बोल दी। इस वे में करने से बेटर है कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे में रखो। Okay. और मैम एक स्माइल बहुत जरूरी है इंटरव्यू के टाइम पे, Right. क्योंकि आपसे खुश इंसान उसको दिखना नहीं चाहिए इंटरव्यू के अंदर। ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। Right. क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के चेहरे पे एक तो वो थोड़ा सा डेस्परेशन सी दिख जाती है कि यार ये होना चाह रहा है, करना चाह रहा है। तो स्माइल जरूर रखो, और एक हाँ स्लो स्लो जाना चाहिए बंदे को। हमें क्या होता है, हम जल्दी जल्दी आंसर देते हैं और सोचते हैं कि बस अपनी ट्रेन पकड़ने हैं घर के लिए, कॉन्फ्रेंस आउट तो हो ही रहे हैं। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें थोड़ा सा स्लो और अपना शांत रह के देना चाहिए इंटरव्यू। तो ये Right. चीजें मैंने इम्प्रूव करी। और हाँ, गाइडेंस में मैंने अपना भोपाल से JCSSB से ली थी। वहाँ पे यशवंत सर एंड जोशी सर से मेरे को काफी अच्छा इन डेप्थ मुझे अपना एनालिसिस मिला। वहाँ पे साइक का उन्होंने मुझे जैसे रिव्यू दिया, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस सा रहता था कि मुझे लगता था कि यार साइक में पता नहीं क्या ही जान लेंगे वो हमसे। मैं मतलब अंदर से हमें एक ना रहता है कि यार साइकोलॉजी है तो बंदा आपकी अंदर की चीजें जान लेगा। Right. बट वो फिर वहां पे जाके पता लगा कि नहीं यार ये तो कुछ और था, और हाँ कर सकते थे, इतना मुश्किल नहीं था। बिल्कुल। और यशवंत सर का मैं बोलना चाहूंगा कि वो उन्होंने बहुत आसान कर दिया कि उन्होंने ये सिखा दिया कि यार जो ऑफिसर है वो भी आपकी तरह ही है, आप में से निकले हैं, तो यू नीड नॉट टू फियर देम। होता है क्या मैम कि हम ना नर्वस हो जाते हैं कई बार, हम जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर को देखते हैं तो उस नर्वसनेस का कारण ये होता है कि एक तो चलो वो पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है जहाँ से वो आए होते हैं, कर्नल पोस्ट या फिर आपके एयर कोमोडोर पोस्ट से आते हैं। तो Right. एक रहता है उसका भी कि हाँ इनका रुतबा है। बट फिर हम एक रुतबे को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमारा खुद का एक अंदर का ना सेल्फ डाउट में गिर जाता है इंसान कि Right. यार ये तो भाई भगवान है। नहीं, नो डाउट है भगवान उस टाइम के लिए जब आपको रिकमेंडेशन देंगे तो ही गॉड फॉर यू। Absolutely. बट बट आपको थोड़ा एक रहना चाहिए कि हाँ यार वो भी मेरी तरह ही है। एंड मैम वहाँ पे ब्रिगेडियर संजय खुरले सर थे, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छा इन डेप्थ हमें एनालिसिस दिया हमारे बारे में, जिससे कि हमें पता लगा कि हम गलतियां करते थे। और जो ये मैं बता रहा था आपको स्ट्रक्चरल वे में बताने का, वो उन्होंने हमें बताया था कि हाँ आप इन डेप्थ चीजें बताओ। अगर आपको इंटरनेट का एक मैम बेसिक क्वेश्चन होता है कि इंटरनेट के यूजेस बताओ, तो मैम हम दो तीन चीजें बताते हैं, उसके बाद हम खत्म हो जाते हैं। बट उन्होंने फिर बताया कि यार आप UPI करते हो, आप शॉपिंग करते हो, आप अपने बिल्स भरते हो, कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, और उसके बाद कोई कैब कर रहे हो। तो ये पांच से छह चीजें उन्होंने गिनाई, ये तो मैंने कम गिनाई है, उन्होंने मुझे 10 गिना दी। और मैं हैरान था कि यार ये तो मुझे पता था, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उनके आगे। Okay. तो यहाँ पे उन्होंने फोकस किया कि आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करो चीजों को, और हर छोटी सी छोटी चीज देखो। हर टास्क में इसका यूज है। GT में भी आपका एक ऑब्जर्वेशनल, अगर आप अच्छे रहोगे, एक अच्छा ऑब्जर्व करोगे चीजें, तो आपकी GT भी इंप्रूव रहेगी। और साइक में मैम ऑब्जर्वेशन का बहुत रोल है कि आप अगर अच्छे से चीजें ऑब्जर्व करते हो तो आपको उसके बारे में पता होता है। एंड वहाँ पे जब हम टैट करते हैं तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो इसमें मैंने SSB में अपना परफॉर्म किया। एंड उसके ग्रेट। बाद देखिए परफॉर्मेंस आई सभी गॉट आपने शेयर रिकमेंडेशंस। कर दिया पुष्पेंद्र। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब चीजों को डिस्कस कर लिया है, पर कुछ कुछ चीजें सेगमेंट्स और हैं जिनको मैं थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगी। स्पेसिफिकली जब हम फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं तो CPSS का एग्जाम होता है, और दिस इज एन वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। CPSS PABT, तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है क्या, या किस तरह से इस एग्जाम को देना चाहिए?
मैम सीपीएसएस के लिए बेसिकली हमारा साइकोमोटरिक जो स्किल्स हैं वो देखी जाती हैं। तो उसके लिए अगर आप अगर कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो हमारे जो सीडीएस का जो एक्सपीरियंस था उसमें हमारे साथ 9 बच्चे थे हमारे सीडीएस के, और 10 बच्चे थे एनडीए के। तो एनडीए वाले सभी का सीपीएसएस क्लियर हो गया, और हम जो थे सीडीएस वाले उनका 5 का क्लियर हो पाया, 4 का। तो ये थोड़ा सा रहता है कि जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो एक्टिव रहते हैं थोड़े स्पोर्ट्स में, या फिर अपना गेम्स खेलने में भी। तो अगर आप एक्टिव हो स्पोर्ट्स में, तो ये आपके जो साइकोमोटर स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। तो वहां से आप सीपीएसएस के लिए आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो सकती है। तो थिंग इज कि आप कोई गेम्स जरूर खेलो, सो दैट आपकी जो आई और हेड का कोऑर्डिनेशन है, थोड़ी ऐसी गेम्स ट्राई करो जिसमें थोड़ा सिमुलेशन वगैरह हो, सो दैट आपका आई और हेड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे वो चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। पुष्पेंद्र, नाउ कम्स द रैपिड फायर राउंड। एंड उसके बाद भी कुछ कुछ पार्ट्स है जो मुझे, जैसे कॉन्वर्जेशन हमने करी पहले, उसके थ्रू मुझे क्लियर हुई है, बट विल टॉक राइट नाउ अबाउट द रैपिड फायर राउंड। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू टेल मी द रीजन एंड द what is your answer first and then the reason behind it. Okay? Okay. So one defense officer you look up to. Captain Vikram Batra, Okay. and he was part of our NCC. He was an alumnus of one Chandigarh Air Squadron, and उनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, एंड उनका जो डायलॉग है, ये दिल मांगे मोर, वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करती है। Okay. Your favorite Air Force aircraft? है। राफेल। राफेल काफी मैम फेमस होता जब वो आया था, तो मेरे मन में था कि यार इसको तो ट्राई करना है कि One SSP myth you want to bust. एसएसबी में के लिए तो मैम मिथ बहुत ही ज्यादा हैं आज के टाइम पे। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि दे ओनली नीड ऑर्डिनरी पीपल, दे डोंट नीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। Okay. आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का चांस ज्यादा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑर्डिनरी ओनली। तो नॉर्मल रहो, यू विल गो थ्रू। Okay. GTO interview psych, your favorite and why? साइक बेसिकली, आई थिंक साइक मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है मैम हर चीज को ना जानने की, कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो वो चीज ने मेरे अंदर एक नॉलेज का एक डेटा सेट इकट्ठा कर दिया, जिससे कि ना मेरे को साइक में काफी हेल्प हुई। तो मैं चाहूंगा कि हाँ, मैं ये कहूंगा कि साइक मेरी अच्छी है। और हाँ, एयरफोर्स के लिए मैम एक आपका फैक्टर रहता है कि साइक काफी अच्छी होनी चाहिए आपकी। एंड इसलिए मैं क्या कहूंगा कि हाँ, साइक बहुत इम्पोर्टेंट। Okay. One message for fresher and repeater. फ्रेशर्स मैम, फ्रेशर्स क्या करते हैं, जो वो सीरियस नहीं लेते चीजों को, वो थोड़ा सा ना कैजुअल रहते हैं, कि वो लक्ष्य की तरह कि यार एक एग्जाम है और एक इंटरव्यू और मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो फ्रेशर्स के लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ करो। सीरियसनेस भी जरूरी नहीं है, सिंसियरिटी। और जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स का मैम ये होता है कि थोड़ी ओवर प्रिपरेशन हो जाती है रिपीटर्स की कई बार, कि 10 बंदे बताते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदे को पता नहीं लग रहा होता तो गाइड करने वाले ऑटोमेटिकली बन जाते हैं आपके, कि हाँ भाई तेरे को तो मैं बताता हूँ कि तू ऐसा कर ले, हो जाएगा तेरा। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस करना चाहिए रादर देन किसी और की। एक बंदे को फॉलो करो, मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखो। Okay. One habit you can't give up during preparation. एक हैबिट मैम, योगा मैम जरूर करता हूँ मैं, और वो चीज मेरे को काफी हेल्प करती है अपना प्रेशर हैंडलिंग में, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और वो मैंने एसएसबी के अंदर भी नहीं छोड़ा, एंड आई यूज टू डू योगा डेली। जब भी मेरे को मौका मिलता था, मैं सुबह सुबह जल्दी उठता था स्पेशल, मतलब पांचों के पांचों दिन मैंने करा योगा वहाँ पे भी, जब भी मैं स्टे किया मैंने एसएसबी के अंदर। तो ये चीज मेरे को काफी हेल्प करती है। तो So a song that keep you motivated. एक सॉन्ग था, रुक जाना नहीं यूं कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के। Any quote that has been constantly there in your head while preparation. सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। Okay. One line that defines your journey. कंसिस्टेंसी। Okay. पुष्पेंद्र, मुझे लगता है कि हमने सब चीजों को लगभग कवर किया है, बट पर्सनल इंटरव्यू के राउंड में थोड़ा सा एम्फेसिस और करना चाहूंगी। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देयर आर टाइम्स दे पुट प्रेशर टू चेक वेदर यू विल बी एबल टू मैनेज इट, या आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओ इस तरह से। तो किसी पूरे आपके इतने सारे इंटरव्यूज जो आपने पास्ट में दिए हैं, एंड इंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू, डू यू रिमेंबर एनी टाइम दैट दे हैव ट्राइड टू पुट प्रेशर ऑन यू एंड यू हैव हैंडल इट सो वेल? एक बार हुआ था मैम, जब मैंने आर्मी की एसएसबी दी थी, तो उसमें क्या था कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो बेसिकली मेरी मतलब स्ट्रेस हैंडलिंग देखना चाह रहे थे। मेरे को बार बार सिचुएशंस दे रहे थे, जैसे उन्होंने बोला कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ फुटबॉल मैच, तो तुम क्या करोगे। मैंने बोला सर
कि जो बेसिक प्रोसेस होता है, हम परमिशंस लेंगे और ड्यूटीज असाइन करेंगे अपने बैचमेट्स के साथ, एक स्केड्यूल बनाएंगे, एंड उसके बाद जो हमारा चीफ गेस्ट होगा उनको बुलाएंगे, हम्म, और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ग्राउंड की परमिशन हैं, वो लेके हम ऑर्गेनाइज करवा देंगे। हम्म, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो फुटबॉल मैच हो गया। उसके हम्म, बाद तुम जीत गए। हम्म, तो अब तुमने जीतने के बाद तुम्हारे जो टीममेट्स हैं ना, हम्म, वो बोल रहे हैं, कुछ कुछ टीममेट्स ऐसे बोल रहे हैं कि घूमने जाना है, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं जाना है। तो हम्म, अब तुम क्या करोगे? मैंने बोला सर आई विल कन्विंस देम कि चलो चलते हैं यार, इट्स पार्टी टाइम की, एंजॉयमेंट का टाइम है, कभी कभार मौका मिलता है, तो वी शुड गो फॉर द ट्रिप। तो कहते हैं चलो ठीक है, तुम अब ट्रिप पे जा रहे हो, तो ट्रिप पे चले गए तुम। बट वहां पे क्या हुआ, तुम वहां पे पहुंचे हो, तुम में से जो तुम्हारे टीममेट्स थे उन्होंने बोला कि ड्रिंक करते हैं। हम्म, तो बोलते कि अब क्या करोगे? हाँ, मैंने हाँ, बोला सर आई एम नॉट अ ड्रिंकर, तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा, एंड बीइंग एन ऑर्गेनाइजर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको समझाऊं, एंड टीम को मैनेज करना एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं अलाउ करूंगा उनको ड्रिंक करना। तो हाँ, हाँ, बोलते अच्छा ठीक है। अब वो रुके नहीं आगे, फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है पुष्पेंद्र, ये बात तो आ गई तुम्हारी ट्रिप की, हम्म, अब तुम फिर से वापस चलते हैं वहां पे जहाँ पे तुम्हारा स्पोर्ट्स गेम होना था। हम्म, अब तुम्हारा क्या था कि फुटबॉल मैच भी आ गया और तुम्हारे एग्जाम भी आ गए, अब क्या करोगे? और फुटबॉल मैच तुम्हारा एग्जाम के एक दिन बाद है। तो मैंने बोला सर हमारे यहाँ पे प्रोविजन होता है कि हम अपना एग्जाम पोस्टपोन करवा सकते हैं, तो मैं अपना एप्लीकेशन लिखूंगा और अपने सारे टीममेट्स की साइन भी करवा लूंगा और एग्जाम पोस्टपोन करवा दूंगी। हम्म, तो कहते हैं ठीक है। कह रहे अब तुम फुटबॉल मैच फिर से जीत गए हो और अब तुम फुटबॉल मैच जीतने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, और तुम्हारे टीममेट्स कह रहे हैं कि घूमने चलना है, और तुम्हारी मम्मा का फोन आया कि तुम्हें अपना ट्रिप पे नहीं जाना क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं बताऊंगा ही नहीं मम्मी को कि मैं बीमार हूँ। कह रहे नहीं 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 नहीं, मम्मी को पता लग गया। मैंने कहा सर इस केस में तो मैं उनको एश्योर करूंगा कि मैं दवाई लेता रहूंगा साथ साथ, और आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो कह रहे अच्छा ठीक है। तो फिर वहां जाके वो शांत हुए, मतलब काफी उन्होंने किया मेरे को कि हाँ बता बता बता। बट काफी अच्छा इंटरव्यू था वो, और उन्होंने प्रेसिडेंट थे वो, बेसिकली काफी प्यार से लिया। मेरा ओके, एक्सपीरियंस कभी मैम ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने कभी बहुत ज्यादा ग्रिल किया हो मेरे को इंटरव्यू में। बट हम्म, हाँ एक चीज ये जरूर थी कि एयरफोर्स के लिए एक बार मैं गया था एनसीसी स्पेशल एंट्री में। ओके, तो उन्होंने मुझे वहां पे हिंदी में उन्होंने शुरू कर दिया था इंटरव्यू लेना। तो हम्म, फिर तब मैं बीच में खुद भी हिंदी में आ रहा हूँ, फिर मुझे याद आ रहा है कि अरे नहीं यार ये तो तेरा इंटरव्यू चल रहा है, वापस आ वापस आ। तो हाँ, वहां पे थोड़ा सा फनी हो गया था मेरे लिए कि अरे भाई ये नया एक्सपीरियंस हो गया। ओके। इसके अलावा कोई इंसिडेंट या कुछ क्वेश्चन हो या आपको इस तरह की कोई मेमोरी हो इंटरव्यू की जो आपको याद आ रही है? बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, हर इंसान का इंटरव्यू के रिगार्डिंग में डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, और कई बार इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है उसके थ्रू एक जो कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर उसको एक ग्लिम्स हो जाता है कि किस तरह की क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो कुछ आपको यूनिक क्वेश्चन याद आ रहा हो या कुछ इस तरह की मेमोरी इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो? मैम मेमोरी अगर मैं शेयर करूँ तो पता लगे, लेकिन वो ऐसा था कि मेन जो आपका जो है इंटरव्यू, मैं राइट। बताना चाहूंगा कि आपका मेन इंटरव्यू आपके बारे में है। हम क्या करते हैं, एक गलती जो मैं बताता हूँ मैम, हम बच्चे सोचते हैं कि यार हम जनरल नॉलेज अपनी अच्छी कर लेंगे ना तो हमारा हो जाएगा। हाँ, हाँ, जनरल नॉलेज इज अ फैक्टर, बट ऐसा नहीं है कि आपको जनरल नॉलेज पे ही फोकस करना है और अपने ऊपर फोकस नहीं करना। हम क्या करते हैं कि मैं अपनी गलती बताता हूँ, तो मैं जनरल नॉलेज को खींचता रहता था कि भाई अब ये पढ़ना है, अब वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। बट नहीं, जब आप अपने ऊपर चीजें, अगर आप अपनी जो चीजें आपने करी हुई हैं, आपके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है, और आपने अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लिए हैं, राइट। एंड आपने आसपास क्या क्या अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स करे हैं, तो वो चीज अगर आप अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो ना, अरे तो दैट्स सफिशिएंट। एब्सोल्युटली। और बात करें तो उसके अगर कोई क्वेश्चंस की, तो मैम एक क्वेश्चन ये था कि सर ने पूछा कि तू पंजाब यूनिवर्सिटी से है, तो वहां तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती होंगी, तो तेरे पास तो मतलब भंडार होगा फिर। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं अपना एग्जाम्स पे फोकस करता हूँ और मेरे को डिपार्टमेंट भी जाना होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता, एंड आई फील कि थोड़ा सा इन चीजों में टाइम देना पड़ता है। तो बोलते कि तो फिर तो ये तू कह रहा है कि डिस्ट्रैक्शन है गर्लफ्रेंड होना। मैंने कहा सर मैंने कहा कि यार मैं फंस गया यार गर्लफ्रेंड को डिस्ट्रैक्शन कैसे बोलूं मैं अब? तो फिर वहां पे मैंने कहा कि सर इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, ये जरूर है कि आपको शुरुआत में टाइम देना पड़ता है, और उस चीज के लिए मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है सर। तो उस तरीके से मैंने उसको हैंडल किया कि हाँ, जब आप स्लो आंसर दे रहे होते हैं ना मैम, इस चीज का ये फायदा होता है, आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। एब्सोल्युटली। सबके पास मैम आंसर सभी के पास है, किसी के पास आंसर्स की कमी नहीं है। बट द थिंग इज आपको कॉन्फिडेंस से आंसर जब देना है ना, वो आपको गेम चेंजर प्रूव करता है। तो यही मैं बोलूंगा कि
सबके पास जस्टिफिकेशंस होती हैं, बट द थिंग इज वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप धीरे बोलोगे और अपना स्लोली बोलोगे तो हाँ, यू विल गो थ्रू। एब्सोल्युटली। यहाँ पे मैं कुछ चीज ऐड करूंगी, जैसे भी आपने एक पॉइंट कहा कि करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना हो और अपने आप की चीजों पे या अपने आप के बारे में ज्यादा ना जानना एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है इंटरव्यू के टाइम पे। एंड अगर नॉलेज की बात आती है तो आप तीन इंटरनेशनल न्यूज, तीन तीन नेशनल न्यूज को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेट के रिगार्डिंग सीएम एंड रिगार्डिंग कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजों को आप गो थ्रू कर सकते हैं। अपनी सिटी के बारे में जानो कि वहाँ पे क्या फेमस है। दे विल फाइंड अ रियली यूनिक वे टू आस्क दोज थिंग्स कि लाइक आई एम कमिंग टू योर सिटी एंड मैं ट्रेन से आया हूँ, तो आप किस तरह से आप अपनी सिटी घुमाओगे। उधर भी आप अपनी माइन्यूट मिनट डिटेल के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि यू कैन शो हॉस्पिटैलिटी नेचर, कि आप उनको घर लेके आ रहे हैं, देन अपने जगह का फेमस खाना खिला रहे हैं एंड दैट इज बीइंग होम कुक्ड। एंड देन फैमिली गैदरिंग, फैमिली बॉन्डिंग आप वहाँ पे शो कर सकते हो। एंड देन क्रिएट अ प्रॉपर आइटनरी, अगर आपकी कोई सिटी में आता है तो किस तरह से चीजें हैं। आपको अपनी सिटी के रिगार्डिंग किस तरह की क्रॉप्स उगती है उसका पता होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, मोस्ट ऑफ द लोग का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या चीज वहाँ पे फेमस है, वेदर रिगार्डिंग, एंड कोई टूरिस्ट प्लेस है तो क्या चीज है, क्लोथिंग रिगार्डिंग की क्या कल्चर रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है उस जगह का नेम वो क्यों है। नॉट ओनली दैट बट अबाउट यू एज वेल, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एज वेल, आपको सब चीज पता होनी चाहिए। एंड जैसा आपने कहा ना पुष्पेंद्र की वाई लाइफ में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ये चीज क्यों कर रहे हैं। बिकॉज वाई यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स इज अ जनरल क्वेश्चन, आई थिंक हर किसी कैंडिडेट से पूछा जाता है। एंड मैं बता रही हूँ कि लोग के पास इसके आंसर नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ, आप अगर आपका वीडियो देखा है, दे विल बी इंस्पायर्ड बाय यू एंड दे विल टेल द सेम रीजन, कि मेरा भी स्टोरी है, बट आप उस चीज से रिलेट लंबे टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू नो योरसेल्फ बेटर, प्रिपेयर अ डायरी, स्टिक योर पीआईक्यू विद दैट, एंड आप हर चीज को गो थ्रू करो। अगर आपने हॉबी भी तीन चीजें भी लिखी हैं और आपको अच्छे से क्लैरिटी है कि इस स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको हर चीज की क्लैरिटी है, तो आप उन चीजों को लिखो इंस्टेड ऑफ 10 चीजें जो आपने कभी कभी रैंडमली करी हैं। अगर वो कुछ पूछ रहा है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, चीजें कैजुअली भी करिए तो भी आप उसको नोट डाउन करिए। डोंट ब्लैंक डाउन एनीथिंग, हैव समथिंग इन एवरी कॉलम, एंड वो चीजें टाइम के साथ पता चली जाती है। पुष्पेंद्र, वी हैव कम टू एन एंड एंड आई थिंक हमने हर चीज को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। बट देर आर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटर्न, एंड स्पेशली जब इनिशियल प्रिपरेशन में तो जोश रहता है, पर टाइम के साथ साथ ना जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं एनडीए के बाद ग्रेजुएशन प्लस एंट्रीज में, देन फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो कि आपके साथ वाले सेलेक्ट हो जा रहे हो और आप कहीं ना कहीं रह जा रहे हो, चाहे स्क्रीन आउट होके, कॉन्फ्रेंस आउट होके। देयर आर टाइम्स यू गेट इवन रिकमेंडेड बट बिकॉज ऑफ सम रीजन यू कांट जॉइन द एकेडमी। तो फिर वापस सेम पॉइंट से प्रिपरेशन शुरू करना पड़ता है एंड डिमोटिवेशन रियली हैम्पर्स योर प्रिपरेशन। तो उन लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहो तो दैट विल बी रियली ग्रेट। मैम इस सिचुएशन में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी जर्नी को देखना चाहिए। होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ काफी बार हुआ, क्योंकि मैं सीडीएस के टाइम पे जब एसएसबी के बाद देखता था कि यार काफी मेहनत लगती है रिटर्न के एग्जामिनेशन के लिए, एंड उसके बाद आप फेल होते हो तो फिर आपकी सारी मेहनत फिर से खराब। एंड सेम गोज विद दी मेरिट एंड मेडिकल आउट। तो उसमें तो मैम हमें एक चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों से कंपेयर ना करें अपने आप को, रादर फोकस ऑन योर ग्रोथ, कि आप कहाँ से शुरू कर करा था आपने और अब आप कहाँ पहुंचे हो। होता क्या है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमेशा एक दुख का फैक्टर आ ही जाता है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए मैम, एंड लर्न टू एम्ब्रेस द प्रोसेस, क्योंकि जो मुश्किल टाइम होता है उस टाइम पे भी हमें ना कई बार चीजें सिखा के जाता है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जस्ट बी काम एंड कंपोज एंड वेट फॉर द राइट टाइम। Absolutely. I think you're living your best time right now. After यस everything you've done and you're being preparing yourself for the academy. So wishing you all the very best, Pushpender. And I'm sure कि आपके वीडियो से कोई ना कोई definitely inspire होगा. And इस तरह की जर्नी जब इंसान सुनता है प्रिपरेशन फेज में, तो उनको एक मोटिवेशन क्रिएट होता है. And that is my motive when you have joined me. So thank you so much. थैंक यू मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.